I couldn't find a better set of people to be with on the stage. So thank you for whoever put us all together. Your question, do we have multiple options? Answer is yes. Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You shouldn't be criticizing. और जो मजे की बात ये थी कि वो अमेरिकन को लेक्चर करते रहे हैं, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लेक्चर देते रहे हैं उनकी मौजूदगी में। देखें जी, पहले तो डिस्प्यूटेड इशू था, लेकिन अब नहीं रहा, क्योंकि इंडिया ने अपने अंदर दम करके उसको एक प्रॉपर सूबा बना लिया है। नरेंद्र मोदी उनके हिस्ट्री का सबसे जो अच्छा प्राइम मिनिस्टर है, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट नरेंद्र मोदी के दौर में हुई है। उल्टा बरक्स हमारे इधर कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। जो हमारे जो आस पड़ोस की कंट्रियां हैं, उनमें से सबसे ज्यादा तरक्की इंडिया कर रहा है, मानते? जी हाँ, हम इस बात को तस्लीम करते हैं। डॉक्टर जयशंकर वो एक बड़ी इम्पोर्टेंट म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में म्यूनिक में है और कुछ उन्होंने बातें की हैं दैट आर रिगार्डिंग ग्लोबल साउथ, दैट आर रिगार्डिंग आवर रीजन। क्या टेक्नोलॉजी का लिहाज से हम मुकाबला कर सकते हैं इंडिया का? नहीं। कौन सी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम? लेदर की। इंडिया को ये जरूरत हुई कि उसने कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को अपने साथ मिला लिया और अब उसकी नजरें जो हैं वो पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर की तरफ हैं, वो उसको भी हड़प करना चाहता है। उन्होंने कहा कि जो गुड पार्टनर्स होते हैं वो चॉइसेस देते हैं और जो स्मार्ट पार्टनर्स होते हैं वो उनमें से कुछ चॉइसेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। इकोनॉमिकल लिहाज से, पैसे के लिहाज से, पावर के लिहाज से कौन सा कंट्री ज्यादा मजबूत है, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? हिंदुस्तान मजबूत है। क्यों? हम जितने पाकिस्तान। জয় হিন্দ বন্ধুরা, আমি দীপ আর আপনারা দেখছেন আপডেট ইন্ডিয়া। আপনারা তো সবাই জানেন, কেননা গতকালকে আমি আপনাদের একটি ভিডিও বানিয়ে দিয়েছিলাম, সেখানে বলেছিলাম যে রাশিয়া স্পেসে নিউক্লিয়ার ওয়েপনকে ইন্ডাক্ট করার প্ল্যান করেছে। আর এই খবরটা যখনই ভাইরাল হয় তারপরে থেকে বিশেষ করে আমেরিকার তরফ থেকে ভারতের উপর প্রেসারকে বানানো হয় যে ভারতের সাথে আজকের দিনে রাশিয়ার যে সম্পর্ক সেটা গোটা বিশ্ব জানে। তাই ভারতের কাছে রিকোয়েস্ট করেছে আমেরিকা যে রাশিয়ার সাথে কথা বলে ভারত যেন রাশিয়াকে এই সমস্ত কিছু করা থেকে থামায়। কেননা আজকের দিনে ভারত এমন একটি শক্তি হয়ে গোটা বিশ্বের সামনে উঠে এসেছে যে ভারত সমস্ত রকম প্রবলেমকে সলভ করার মতন ক্ষমতা রাখে। তাই তো আজকের দিনে অনেক দেশ ভারতের কথাকে গুরুদেব হিসেবে মেনেও নেয়, যেটা আপনারা জানেন। সেই জন্য আমেরিকা ভারতের কাছে রিকোয়েস্ট করেছিল যে প্লিজ আপনারা রাশিয়ার সাথে কথা বলুন আর এই বিষয়টাকে নিয়ে তাদেরকে একটু বোঝান যে তারা যেন এটা না করে। এটা তো আপনারা জানেন, গতকালকে ভিডিও বানিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন খবর বেরিয়ে আসছে এটাই, কেননা ভারতের বিদেশ মন্ত্রী স্যার এস জয়শঙ্কর স্যারজি আর আমেরিকার বিদেশ মন্ত্রী, দুই বিদেশ মন্ত্রী যখন একসাথে ছিল তো সেই মুহূর্তে পশ্চিমী মিডিয়ার দুজন নিউজ অ্যাঙ্কার তারা সরাসরি ভারতের বিদেশ মন্ত্রী স্যার এস জয়শঙ্কর স্যারের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করে, বিশেষ করে রাশিয়াকে নিয়ে। আর এটাও তো আপনারা জানেন যে আজকের দিনে আমেরিকা থেকে শুরু করে পশ্চিমেরা তারা কখনোই চায় না ভারতের সাথে রাশিয়ার যে সম্পর্কটা হয়ে আছে সেটা যেন এরকম বা মধুর থাকুক। তারা সর্বদা চায় ভারত রাশিয়ার থেকে কাঁচা তেলকে কেনা বন্ধ করুক, ভারত রাশিয়ার থেকে উইপনকে কেনা বন্ধ করুক। এক কথায় রাশিয়ার সাথে যে সমস্ত সম্পর্ক আছে, উইপন থেকে শুরু করে ব্যবসায়িক অল ওভার সমস্ত কিছুকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য প্রেসার বানায় আমেরিকা থেকে পশ্চিমারা। কিন্তু ভারত তো নাচড়বান্দা। ভারত জানে যে এই মুহূর্ত থেকে শুরু করে ইতিহাস পর্যন্ত ভারতের ভালো বন্ধু কে ছিল আর ভারতের বিপদে কে পাশে দাঁড়িয়েছে। তাই ভারত গোটা বিশ্ব উল্টে গেলেও ভারত রাশিয়ার বন্ধুত্ব কখনো কমেনি। আর এর ওপর দুই সাংবাদিক পশ্চিমা মিডিয়ার যখন এস জয়শঙ্কর স্যারজিকে জিজ্ঞাসা করে এর ওপর রাশিয়ার সাথে ভারতের যে সম্পর্ক সেটাকে খারাপ করার জন্য বা সেটাকে বিচ্ছেদ করার জন্য, তো ভারতের বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর স্যারজি চাণক্য নীতির হিসেবে যে কূটনৈতিক চালকে দিয়ে যে সমস্ত কথাগুলো বলেছে না, সেই কথাগুলো শুনে সেই দুই মিডিয়ার তাদের বলতি বন্ধ হয়ে গেছে বা তাদের কথা বলায় বন্ধ হয়ে গেছে। তারা এটা বলে উঠতে পারেনি যে পরবর্তী এস জয়শঙ্কর স্যারজিকে কোশ্চেনটা কি করব। আর এই ভিডিওটা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভীষণভাবে ভাইরাল হয়েছে। আর এটা কি পাকিস্তানি মিডিয়া দেখে তারাও বুঝে উঠতে পারছে না যে ভারতের বিদেশ নীতি এতটা স্ট্রং কি করে হলো। আর ভারতের বিদেশ নীতি আজকের দিনে এতটাই স্ট্রং যে ভালো ভালো দেশের বিদেশ নীতি ভারতের বিদেশ নীতির কাছে ফেলিওর হচ্ছে। তাই তো ভারত দ্রুততার সাথে বিশ্বের গুরু হিসেবে এগিয়ে যাচ্ছে। পুরো বিষয়টির উপর পাকিস্তান মিডিয়াতে কি চলছে সেটা আপনারা দেখে নিন। আর হ্যাঁ, চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।
कितने हम मुसलमान हैं, हम ना अपने मुल्क के साथ मुखलस हैं ना हम मुसलमानों के साथ मुखलस हैं। वो यहूदी लॉबी हो गई, इंडियन लॉबी हो गई, हिंदुइज्म हो गया, जो भी है वो अपने मुल्क के साथ और अपने लोगों के साथ वफादार है। हम लोग वफादार नहीं है। क्यों हिंदुस्तान मजबूत है? आज आप एक पाकिस्तानी होके हिंदुस्तान की तारीफ कर रहे हैं। डेमोक्रेसी जमहूरियत है ना उधर। अच्छा, आपको कितना पता हो उसके बारे में? नहीं, इतना तो नहीं पता, लेकिन मीडिया से पता चलता है उसकी इकॉनमी और उसकी अपनी ये की चीज़ें जो अपनी खुद वो बना रहा है। डॉक्टर जयशंकर जो हैं, ये थोड़ा फर्क है इसमें बात में। जहां भी जाते हैं, जिस जिस मुल्क को उन्होंने जितनी जितनी मदद दी होती है, वो हर जगह उसका जिक्र कर रहे होते हैं, जस्ट टू कीप टेलिंग कि जी हमारा स्टेटस बढ़ रहा है। जो गोरे हम कहते हैं वो जहन्नुमी है, वो अच्छी दवाई बनाकर मरीजों की जान बचा के वो जहन्नुम में जाएंगे। हम लोग बुरी दवाई बनाकर इंसानों की जान लेकर हम सोचते हैं हम जन्नत में जाएंगे। जयशंकर वो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में म्यूनिक में है, और कुछ उन्होंने बातें की हैं दैट आर रिगार्डिंग ग्लोबल साउथ, दैट आर रिगार्डिंग आर रीजन एंड दैट आर रिगार्डिंग ओवरऑल इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के हवाले से। और जो मज़े की बात ये थी कि वो अमेरिकन को लेक्चर करते रहे हैं, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लेक्चर देते रहे हैं उनकी मौजूदगी में। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि जो गुड पार्टनर्स होते हैं वो चॉइसेस देते हैं, और जो स्मार्ट पार्टनर्स होते हैं वो उनमें से कुछ चॉइसेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। इट मीन्स कि अगर अमेरिका हमें चॉइसेस दे रहा है और हम अपनी मर्जी से कुछ उनमें से ले लेते हैं, तो दैट इज गुड। सो गुड पार्टनर्स प्रोवाइड चॉइसेस। अगर आप हमारे अच्छे पार्टनर हैं तो आप हमें चॉइस दे रहे हैं। सो वन, हम पे एहसान ना करें। लेकिन एट द सेम टाइम एक क्वेश्चन आता है, वैसे आई डोंट नो यू कैन लिंक इट और नॉट। डॉक्टर जयशंकर जो हैं, ये थोड़ा फर्क है इसमें बात में। जहां भी जाते हैं, जिस जिस मुल्क को उन्होंने जितनी जितनी मदद दी होती है, वो हर जगह उसका जिक्र कर रहे होते हैं, जस्ट टू कीप टेलिंग कि जी हमारा स्टेटस बढ़ रहा है। सो अमेरिका भी जारी बात है, जहाँ जाएगा वो ये बातें तो करेगा, हम आपको चॉइसेस दे रहे हैं, हम आपको एक अहम मौका दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं अगर हम आपको मौका दे रहे हैं? और मज़े की बात यह है कि दोनों सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन की और जयशंकर की आपस में ऐसी केमिस्ट्री है दैट बोथ आर कॉलिंग ईच अदर एज टोनी एंड जे। जय ने ये कहा है, जयशंकर ने ये कहा, और वो टोनी कह रहे हैं। सो लुक एट द लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस एंड लुक एट द लेवल ऑफ द कन्वर्सेशन बोथ द कंट्रीज आर हैविंग, जिसमें ये इसमें जर्मन पार्टनर भी उनकी थी, बैठी हुई थी, जिसमें मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट एक बड़ी बात लगी which I really want to share, and I think Pakistan is out of the game and how क्यों हिंदुस्तान मजबूत है? आज आप एक पाकिस्तानी होके हिंदुस्तान की तारीफ कर रहे हैं। डेमोक्रेसी जमहूरियत है ना उधर। अच्छा, आपको कितना पता हो उसके बारे में? नहीं, इतना तो नहीं पता, लेकिन मीडिया से पता चलता है उसकी इकॉनमी और उसकी अपनी ये की चीज़ें जो अपनी खुद वो बना रहा है, खुद वो यानी कि दूसरे मुल्कों को भी दे रहा है और अपने यूज़ के लिए वो खुद कर रहा है। तो हमारे पास वो उतना वो नहीं है, वसाइल भी होने के बावजूद वो यूज़ नहीं हो रहे। हम कहते हैं कि हर मुकाबला करेंगे उनसे, हर एक मैदान के अंदर हमारी फतेह होगी, हम जीतेंगे। तो पहले अपनी कुर्सी की जंग तो जीत लेना, उसके बाद फिर अपनी करेंगे। अच्छा, सही जवाब दिया। हाँ, पहले हम तो अपनी कुर्सी के पीछे पड़े हुए ना, अभी देख लेना पिछले। कहते उनका मुकाबला करेंगे हर मैदान में। हर मैदान में इंशाल्लाह, वो हमारा ईमान है, लेकिन मुकाबला भी आगे कुछ करके भी करेंगे ना। तो ईमान भी तो कहता है कि 100% तैयारी करके फिर ईमान मजबूत करो अपना, और तैयारी करो ना अपनी तरफ, और ईमान आप कहोगे हमारा मजबूत है कि भाई जीतेंगे, तो हम ही वो अपनी 100% तैयारी के साथ है, हम कहे ईमान मजबूत है। अल्लाह ताला ने ऊपर से मदद थोड़ी भेजनी है, हमें यहाँ पर मदद खुद करनी पड़ेगी। खुद करनी पड़ेगी, बिल्कुल खुद करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें अपना तैयार होना पड़ेगा, हमारे यानी कि हर चीज़ के लिए। तो वो यानी कि बस वर्बली तो अमान है ना, हर बंदा कहता है कि जी अमान है, लेकिन बातों में बड़े हम आगे बहुत तेज है। अच्छा, सर अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि दुनिया इन्वेस्टमेंट कर रही है इंडिया में। अभी आप देखेंगे कि एक चिप्स बनाते हैं, जो कि बहुत सारी लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन में जो चिप्स इंस्टॉल होते हैं, सर वहाँ पर $8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है इजराइल, इंडिया के अंदर। इजराइल के अलावा अगर बात करूँ, यूएसए ने अपने मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर कर रहा है। बड़ी बड़ी इंटेल कंपनी जो है यूएसए की, वो इंडिया में शिफ्ट होगी, और बड़ी बड़ी कंपनी जिसका